السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. آفتاب سلطان 7 ماہ تک چیئرمین نیب رہنے کے بعد آج اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. آئی جی پنجاب اور ڈی جی آئی بی جیسے بڑے عہدوں پر رہنے والے آفتاب سلطان نے واضح طور پر یہ موقف اپنایا ہے کہ وہ کسی کی خواہش پر کام نہیں کر سکتے. آفتاب سلطان نے نیب افسران سے اپنے الوداعی خطاب میں کہا کہ وہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی ریفرنس کو اس لیے فارغ کر سکتے ہیں کہ ملزم کسی بااثر شخصیت کا رشتہ دار ہے. وہ اصولوں پر قائم رہے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. آفتاب سلطان نے مزید کہا کہ وہ نیب میں دیگر اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک پلاٹ والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے اندر کر دیں جبکہ اربوں روپے والے باہر ہیں. انہوں نے کہا کہ نیب افسران صرف قانون کی سنیں، کسی کی مداخلت برداشت نہ کریں اور ڈٹ کر آزادی سے کام کریں. آفتاب سلطان کی ان باتوں سے انکار ممکن نہیں ہے. نیب 1999 میں اپنے وجود کے ساتھ ہی ایک متنازع ادارہ رہا ہے. پاکستان کا کوئی بھی ایسا سیاسی رہنما نہیں جس نے کسی نہ کسی دور میں نیب کو متنازع قرار نہ دیا ہو. سپریم کورٹ بھی متعدد مرتبہ نیب کی کارکردگی پر سوال اٹھاتی رہی ہے. موجودہ اتحادی حکومت میں شامل جماعتیں خاص طور پر عمران خان دور میں نیب کے کردار کی مذمت کرتی رہی ہیں. اس سب کے باوجود نیب کے ادارے میں کبھی اصلاحات کی کوشش نہیں کی گئی. اگر نیب قوانین میں ترامیم کی بھی گئیں تو اپنے اپنے ذاتی مفادات نہ کہ احتساب کو شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے. اسی معاملے پر آج پروگرام کا پہلا سوال رہے گا. پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، ابصار عالم اور اسار رانا صاحب. آپ سب کے لیے پہلا سوال، آفتاب سلطان کا دباؤ برداشت کرنے سے انکار نیب کے کام میں مداخلت کون کر رہا ہے؟ حسن صاحب. پہلی بات تو عائشہ، آفتاب سلطان کو سلام اور سلام عقیدت باقاعدہ. دیکھیں، ہر باضمیر شخص کو دباؤ کسی بھی قسم کا ہو قبول کرنے سے انکار کرنا چاہیے. حکمران چاہے کوئی بھی ہو، وہ عمران ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو. یہ تو ہو گئی ایک اصولی بات. نواز شریف کی سیاست میں آمد کے بعد گورنمنٹ فنکشنریز کو گھریلو ملازم سمجھا جانے لگا، جس کے نتیجے میں بے تحاشا تباہی اور بربادی آئی اس ملک میں. آج ہر سرکاری ملازم ہو میٹرز ریاست کا نہیں، کسی اے بی سی کا گھریلو ملازم سمجھا جاتا ہے. بیوروکریسی ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی ہے. حالانکہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان میں سے اگر 5, 10, 20 غیرت مند نکل آئیں، یہ ٹھکانے پہ آ جائیں گے سارے کے سارے. یہ وہ ملک ہے جہاں 65 سال کے تحصیلدار، پٹواری، پولیس کو وانٹڈ لوگ پولیس میں بھرتی کیے گئے. یہ ایک آئی جی تھے گڈ لکنگ سے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کیا، ان کی ایک رپورٹ ہے بطور سٹنگ آئی جی. اور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا جب میں نے بھری ہوئی بسیں دیکھیں سیالہ سے ماڈل ٹاؤن، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ٹریننگ بڑی سخت ہے، ہمیں پوسٹنگ دو، اور ان کو ملی. یہ کیا بات ہوئی؟ کون ہوں گے؟ مقتدر، حرام خور، اس ملک کی بوٹیاں نوچنے والے، اس ملک کی کھال اتار کے بیچنے والے. اور کون ہوں گے؟ آپ ہو، میں ہوں، شہزاد صاحب ہیں، ابصار ہیں، کون ہیں یہ؟ کون ہوں بھائی؟ کون مداخلت؟ کون کرتا ہے مداخلت؟ کیوں ہوتی ہے مداخلت؟ وجوہات کیا ہیں؟ مثال آپ نے خود دے دی ہے. پورا ملک اس بات کی تصویر ہے. اب ایک نئی بدماشی ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں لوگوں کو پکڑو. ان کو پتہ نہیں اس ملک کے کلچر کا. یہاں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ متمول کون ہے، دولت مند کون ہے، کس کے پاس کس کی کیا حیثیت ہے، چونکہ ریکارڈ تو ہے ہی کچھ نہیں. تو مستقبل کیا ہے پھر نیب جیسے جو ادارے لوگ کا؟ یہاں باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے کاغذ دیکھیں آپ. ٹیکس وصولی والے ہے ہی نہیں، وہ جگہ ٹیکس اور بدماشوں کے کاغذ ہیں. اس کو اوور سمپلیفائی کرو. یہ دیکھو بات سن، آپ کیا کہا آپ نے؟ I'm sorry. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں مستقبل کیا ہے پھر اس ادارے کا؟ سب کو اس پر اعتراض ہے، اس کی کوئی ورکنگ نہیں ہے، ایس او پیز پر اعتراض ہے، قانون پر اعتراض ہے. غلط ہے، مستقبل کیا؟ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے.
किस चीज पे आपको एतराज नहीं है? जुडिशरी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया? कैंगरू कोर्ट से शुरू करो, भुट्टो के मर्डर से शुरू करो, अभी जो मरियम कह रही है मुसलसल उस पे आओ, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो ये क्या बात है? नैब बुरा है, बाकी अच्छे हैं। SHO अच्छा है, सही। नैब बुरा है। ये इनकम टैक्स वाले अच्छे हैं, नैब बुरा है। आपका इरिगेशन, लोग पुलिस को बुरा कहते हैं, असल विलन तो पता ही नहीं इस मुल्क में, क्योंकि उनको डील नहीं करना, उन बदमाशों के साथ डील नहीं करना पड़ता। कौन ठीक है? ठीक। बाप की मौत का डेथ सर्टिफिकेट लेने जाओ तो हराम देना पड़ता है। नमाज जनाजा में दुआ करते हो, शर्म नहीं आती? मां बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान देते हैं, और फिर किसी हराम देना पड़ता है। ये तो औकात है आपकी। आपका पटवारी ठीक है, अभी तो प्रेसिडेंट के कपड़े उतार रहे हो आप। कौन ठीक है यहां? नैब गलत है। कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता नैब गलत है, मुझे तो नहीं उसने बुलाया कभी। वजह? ठीक कह रहे हैं आप। बेशर्मी की इंतहा आयशा। जिस मुल्क में कोई आदमी ये कहे कि बियॉन्ड इनकम, वो क्या क्या होता है, क्या असासे एसेट बियॉन्ड मींस एसेट्स बियॉन्ड मींस, आमदन से और ज्यादा डूब मरो जी। आमदन से जायद असासे, इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इन पे भूखे कुत्ते छोड़ो। आ गए नैब काले। आफ्ताब सुल्तान को सलाम, बागैरत आदमी होगा, उसकी रगों में अच्छे बाप का खून, अच्छी मां का दूध होगा, उसने लानत भेजी। शहजाद साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो गुफ्तगू अलविदाई की उसमें उन्होंने कहा एक प्लॉट वाले के लिए कहा जाता है अंदर कर दें, अरबों रुपए वाले बाहर हैं, और नैब अफसरान से कहा कि आप सिर्फ कानून की सुने और मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। बतौर हेड वो तो ना खड़े हुए, वो बर्दाश्त ना कर सके प्रेशर, तो उनके नीचे कौन बर्दाश्त कर पाएगा फिर उस प्रेशर को? कौन है जो ये मुदाखलत करता है? देखिए, इस तरह के आफ्ताब सुल्तान जैसे सपूत जो है वही एक उम्मीद की किरण रह गई हमारे लिए। हम जब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, तो फिर एक आफ्ताब सुल्तान जैसा कोई उठता है, और मैं ये नहीं कहता कि किसके साथ उसका ताल्लुक था, कौन सी पार्टी से था, पॉइंट तो शायद इसी गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसका एक अमल जो है वो हमें ये उम्मीद दे गया कि इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस जमीन पे ऐसे बेटे मौजूद हैं जो अपने आज भी वैल्यू करते हैं अपनी कदरों को और इंटेग्रिटी को लेके चलते हैं। तो मेरा आफ्ताब सुल्तान की तो बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इन हालात के अंदर, जहां पर इतनी पोलराइज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, और खास तौर पे अपने हक और इंसाफ के लिए खड़े रहना मेरे ख्याल में लायक तहसीन है। उसको शाबाश देनी चाहिए, जितनी ज्यादा दी जाए उतनी कम है। जो मामूल होना चाहिए था, अफसोस क्या है, जो मामूल होना चाहिए था वो एक्सेप्शन है। ये तो हर जगह पे होना चाहिए था, यह मामूल ना बन सका, एक्सेप्शन के तौर पे सामने आया। यही हमारी बदकिस्मती है, और इसी वजह से आज हम वहां पे खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। आज हम इसी चीज का रोना रो रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि ये क्यों हुआ और कैसा हुआ। तोशा खाना का जो केस है, उसके अलावा एक दो और केसेस जो क्रिमिनल केसेस इमरान खान के गिर्द डाले गए, उसको अदालतों में लाया गया, अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। क्या वजह है कि तोशा खाना का मामला आगे ना चल पाया? अदालतें क्यों इसको लेके आगे नहीं चल पाई, बावजूद इसके कलामी की माजरत। शहजाद साहब, इधर चेयरमैन नैब ने कहा कि मैं चलता हूं, मैं ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उधर आज तारीखें निकाल दी गई, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को, परवेज खट्टक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च को, फवाद चौधरी को 8 मार्च को नैब ने तलब कर लिया है। मुख्तलिफ केसेस में तोशा खाना शामिल है उन लोगों के लिए। थोड़ा रियलाइज कर लें कि अगर ये हुआ और आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद हुआ, तो अब इस केस की हैसियत क्या रह गई? ये वो तोशा खाना केस है जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कहती है कि हम डिटेल्स नहीं दे सकते। कोई इसमें तोशा खाना के अंदर ऐसा अमल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मख्फी है? उन तमाम तोहफ के को इंक्लूड करते हुए जो कि इमरान खान के रिपोर्टेडली उसके घर चले गए थे और जो उसने गालिबन रिपोर्टेडली एलिजेडली बेच दी। तो जो मामला लेके जाना चाहिए था और जो एक बहुत बड़ा केस बनना चाहिए था पूरे मुल्क के लिए, पूरी लीडरशिप के लिए, क्या वजह है कि आज की गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो उसके बारे में तफासील नहीं दे पाती उस अदालत को? क्या वजह है कि उसको नैब में फिर लाया जाता है? क्योंकि नैब को मैनिपुलेट किया जाता है। नैब किसके नीचे है? इंटीरियर मिनिस्टर साहब के नीचे है ना। उन्होंने अपने नीचे कर लिया है, नीचे सर जोर लगाया, इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। ये गलत बात है। अदालत में चल रहा है, किसके नीचे चल पा रहा है? इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे।
नैब इज अंडर द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। साबिक हुकूमत ने कहा था कि नैब उनके नीचे नहीं थी, अब हम क्या कहें, आने वाले भी कहें कि नैब हमारे नीचे नहीं थी। इमरान खान साहब ने कहा था ना नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी। अगर आज के हुक्मरान भी मौक़िफ़ अपना लें तो हम क्या कर लेंगे? आपका सवाल आफ्ताब सुल्तान पे है ना, आपका जावेद इकबाल पे होता तो मैं वो जवाब दे देता। आप मुझे आफ्ताब सुल्तान के रेफरेंस से बात करने दीजिए। नैब के कवानीन तब्दील हो गए हैं, इस हुकूमत ने आके नैब को तब्दील कर दिया, नैब के कवानीन को तब्दील कर दिया, डीफैंग कर दिया, उसके पंजे जो थे वो उसको खत्म कर दिया, और लोगों ने बड़ी वाहवाह की, हम भी उसमें शामिल थे। हमने कहा नैब वाकई अपने हदूद से बहुत बाहर जा रही थी और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्या कि आप इस तरह का आप कहते हैं ना, मोहर शब्द कर दी आज आफ्ताब सुल्तान ने जब वो अपना इस्तीफा दिया, और उसके बाद पिंडी बेंच ने इमरान खान को बुला लिया। ये केस आज पोलिटिसाइज हो चुका। ब्यूरोक्रेसी का जो जिक्र किया हसन साहब ने, उसके ऊपर 2 जुमले मुझे कह लेने दीजिए। आज हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों इस हालत पे पहुंचा है, मईशत का क्यों हाल है, मुआशरा क्यों बिखरा हुआ है, क्यों कोई काबू में नहीं है कोई चीज, क्यों हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। डिफॉल्ट सिर्फ मईशत नहीं होगी, पाकिस्तान ना खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नेंस के अंदर, अगर आपको ढूंढनी हो, गवर्नेंस के अंदर ढूंढनी हो, गवर्नेंस के अंदर, तो आपको आपकी जो कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है वो की एलिमेंट है। मुझे बताइए कौन सी पीएसी चाहिए इतनी समिट लेवल के ऊपर जिसके अंदर ये फैसला करेंगे शहबाज शरीफ साहब कि मैंने डीपोलिटिसाइज करना है ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि मैं पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान के हक में सोचना चाहता हूं। उनको जरूरत है वैलिड पॉइंट मगर इस पॉइंट पे कोई सोच कब रहा है और वो तरजीह कहाँ है? शहजाद साहब मैं बात को मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं गुफ्तगू आगे जी। मेरा वज़ीर आज़म नहीं सोचेगा तो फिर और कौन सोचेगा इस मुल्क के लिए? मेरे लीडर नहीं सोचेंगे तो ठीक है, लेकिन सवाल तो फिर वही है, सोच कौन रहा है? अब सार साहब की तरफ जाऊंगी, जो गुफ्तगू हो रही है, अब हमें नए चेयरमैन की तकर्रुरी की तरफ भी जाना पड़ेगा। जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं, एक और सियासी बहरान सामने खड़ा है, मगर माजी से जुड़े बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता और यहाँ पर माजी ही की गुफ्तगू रह जाती है। अब सार साहब, चेयरमैन साबिक जो थे नैब के, जावेद इकबाल, उनके सियाह कारनामे अपनी जगह रहे, मगर आज आफ्ताब सुल्तान को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे क्या नजर आता है इस नैब को लेकर? देखें, अप्रिशिएट उन्हें मैं भी करता हूँ इस सेंस में कि मैं उन्हें जानता हूँ ज़ाती तौर पे, कई सालों से जानता हूँ। वो एक अपराइट ऑफिसर हैं और असूलों पे समझौता नहीं करते। इस हद तक तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा तजर्बा है अपना सरकार के अंदर रहने का, मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा इसका हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस्तीफ़ा देके तो आपने रास्ता साफ कर दिया किसी ऐसे शख्स के लिए जो वही करेगा जो दूसरे इदारे जो मुदाखलत कर रहे हैं वो उसको करने का कहेंगे। जावेद इकबाल जैसे थे, वो रहे ना, अपने टेन्योर से भी ज़्यादा रहे, क्योंकि वो इदारों के इशारों पे चलते थे, वो हुकूमत वक्त के इशारों पे चलते थे। उनकी वीडियो आ गई जिस पे प्राइम मिनिस्टर हाउस ने उनको इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से, वो स्कैंडल तो मेरा ख्याल है सबको याद ही होगा। तो इस तरह के शख्स का रास्ता बना देना एक असूल परस्त आदमी का जाके, मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ना मैं इस पर खुशी मना सकता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि उम्र के जिस हिस्से में हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, वहाँ उनको चाहिए था कि वो खड़े हो जाते और अपने ओहदे पे बरकरार रहते और उस तमाम दबाव का मुकाबला करते जिसका वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कह के चले गए हैं कि आप दबाव का मुकाबला करें। वो नहीं कर सकेंगे सबॉर्डिनेट्स, मुझे पता है। अब पैमरा में आपके ख्याल में मेरे जाने के बाद लोगों ने दबाव का, जो सबॉर्डिनेट से उन्होंने दबाव का मुकाबला किया? नहीं किया। जावेद इकबाल के दौर, अभी आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा आज अपने बयान में कि नैब के 99% लोग सही हैं, 1% गलत हैं, ये कहा ना उन्होंने। तो ये 99% लोग जो सही हैं वो जावेद इकबाल के अंडर काम करते हुए गलत काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना, फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड। अगर हेड ही रॉटन है तो फिर नीचे चाहे 99% ठीक होंगे तो वो काम नहीं हो सकेगा। और हमारे यहाँ वैसे भी किसी इदारे का जो सरबराह होता है वो लालपुर के घंटा घर की तरह होता है, तमाम इख्तियारात, तमाम सड़कें वहीं आके ख़त्म होती हैं। चाहे आप जितने भी ईमानदार हैं, नीचे जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका हेड इदारे का नहीं करना चाहता या आपको नहीं करने देना चाहता। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी अच्छे लोग ब्यूरोक्रेसी में या सियासत में या कहीं भी हैं या इवन जुडिशरी में हैं, आज मुझे बताएं, काजी फायजी साहब का बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, अगर उनको निकाल दिया जाता तो क्या वो बेहतर होता
जुडिशरी की बेहतरी के लिए या इस वक्त वो मौजूद हैं और इंशाल्लाह अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, तो हमें उम्मीद है कि शायद वो आके जुडिशरी को कुछ बेहतर कर सकें। आप खुद फैसला कर लें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक स्टैंड लिया था, उनको निकाल दिया गया। मेरा भी इस पे इतराज है, एक शख्स चीजें सही नहीं कर सकता। हमें जिन इस्लाहात की जरूरत है वो शख्सियत नहीं ला सकती। हम जिस जगह पहुंच गए हैं, माजरत के साथ अफसर साहब, एक बंदा बैठे और इदारा ठीक हो जाए, शायद ये मुमकिन नहीं रह गया। हम जिस जगह आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। आप बहुत यंग हैं अभी, आपको भी तजर्बा ज़िंदगी में हो जाएगा तो समझ आ जाएगी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का मुआशरा या गवर्नमेंट कैसे चलती है। हेड जो है ना हमारे किसी भी इदारे का वो बहुत ताकतवर होता है और वो चाहे तो इदारे को सीधे रास्ते पे ले जा सकता है, वो ना चाहे तो नहीं ले जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इदारे का, मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, आप यही नैब जिसमें 99% लोग बिल्कुल ठीक हैं, बकौल आफ्ताब सुल्तान के, जावेद इकबाल के नीचे उसका आप कारकर्दगी देख लें, खुद अंदाजा लगा लें, खुद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरी राय का भी चले, आप के पॉइंट को आगे लेके चलती हूँ मैं। इसार राना साहब की तरफ जो बात आप कह रहे हैं, इसार साहब आपको लगता है कि कोई एक शख्स ठीक हो और उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो फिर तो आफ्ताब साहब इतने स्ट्रांग थे कि इस नैब को बड़ा वेल परफॉर्म करना चाहिए और भी बहुत से इदारों का। मैं सब उस डिबेट में नहीं जाती हूँ और साथ ही इसको भी कमेंट कीजिएगा मुदाखलत कौन कर रहा है, क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से अता तारड़ साहब ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं था, कुछ नहीं था, होता तो पीटीआई की आधी क़यादत अंदर होती। यानी उन्होंने ये बता दिया कि हमारी ख्वाहिश तो ये कि पीटीआई की आधी क़यादत अंदर हो, यही समझे आप। उनकी एक दबी दबी मासूम सी ख्वाहिश तो चले सामने आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो टीपू सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, मैं समझता हूँ कि आप हैरानी हुई मैंने उन्हें टीपू सुल्तान कह दिया। टीपू सुल्तान ही है वो आज के दौर के। जो भी ताकतवर के खिलाफ इस तरह डट के खड़ा हो जाए, मेरे नज़र में तो वो टीपू सुल्तान है, वो आफ्ताब सुल्तान नहीं, वो टीपू सुल्तान है। नहीं तो क्या हमें जावेद इकबाल जैसे लोगों की जरूरत है अगर वो डट के खड़े ना हुए? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब जो है अफसार भाई की बात से जुड़ा है कि इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और इन डटे रहना चाहिए था तब तक जब तक इनकी कोई अपनी ऑडियो और वीडियो ना आ जाती, तब तक डटे रहना चाहिए था इन्हें। तो इस गंदी गलाजत के उसमें हर शरीफ आदमी जो है वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है। उसे पता है कि अगर मैं अपने असूलों पे खड़ा हूँगा तो कहीं ना कहीं से ऑडियो, कोई ना कहीं से वीडियो ज़रूर आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो इस सिस्टम में न्यूंदरा डाल दिया ना इस्तीफा देके, ये एक हमेशा के लिए याद रहेगा। दूसरी बात ये कि आयशा देखें, जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ों न दे पीड़, ठीक है, हमें इससे एतराज नहीं है। जिन लोगों ने मुल्क के खजाना लूटा है वो कोई भी हो, उसको बुलाना चाहिए, उसके गिरबान में हाथ डालनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब सुल्तान के जाते ही ऐसे लग रहा है जैसे डक्का खुल गया है और फटाफट एनू भी फाड़ लो, एनू भी बुला लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। क्या मतलब है इस बात का? क्या आफ्ताब सुल्तान रुकावट थे इन सारे मामलात में? और मेरे प्यारे मासूम दोस्त की ख्वाहिश के मुताबिक कि आधी पीटीआई को अंदर होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं, अब ये नैब उन्हें बुला रही है ना, तो ये देखिए कल जेल भरो तहरीक में सबसे पहले ये गिरफ्तारियां देंगे। कौन? इमरान खान साहब? ये सारे लोग। इमरान खान साहब तो गिरफ्तारी नहीं दे रहे। चलिए इनको नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कुरैशी साहब ने कहा है कि वो पहली गिरफ्तारी देंगे। बुशरा बीबी भी मुझे लगता है कि ना गिरफ्तारियां दे, जाहिर है गिरफ्तार हो जाएंगे तो नैब के पास नहीं जाएंगे ना। क्या बात है। उनका एक वो भी मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपकी भी ख्वाहिशात अपनी है। नहीं, मेरी ख्वाहिशात नहीं है। मैं तो जो मुझे दीवार पे लिखा नजर आ रहा है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। और आखिरी बात ये, अब कहने के नैब के काम में कौन मुदाखलत करता है? जी, ब्रेक पे जाना है मुझे, जल्दी बता दें कौन का। तो ब्रेक के बाद बता दूं? नहीं, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, अभी आप कह दें। अच्छा चलें फिर ठीक है। बस एक मैं आपको एक शेर छोटा सा सुना के फिर आप ब्रेक लीजिएगा। वो कहते हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जो चेयरमैन नैब जब खड़कता है तो नीचे खिड़कियां खड़क जाती हैं, लेकिन जब खिड़कियों पे ज्यादा दबाव पड़ता है और वो खड़कती हैं तो फिर चेयरमैन नैब ऊपर खड़क जाता है। और ये इनकी कुंडियां जो है ना खिड़कियों की, किसी और के हाथ में, जिस पे ना आप बात करना चाह रही है ना मैं बात करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज सवाल रखा है, आप कुंडियां खिड़कियां खड़का रहे हैं, मुझे ब्रेक पे जाना, डायरेक्टली सवाल किया, कौन मुदाखलत कर रहा है, आप जवाब दें। सवाल करें बजाय आफ्ताब के डायरेक्ट सवाल। पहले मैं एक छोटी सी बात कर सकता हूँ?
सर ब्रेक से आती हूँ तो फिर आप कहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो बात करेंगे एक सोशल इशू के ऊपर, इंतहाई अहम मामला जिसकी गूंज फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में आई मगर कोई फर्क ना पड़ा। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। जमीन कांपी ना आसमान गिरा, सोशल मीडिया पर खातून की वीडियो वायरल हुई जिसने कुरान पाक पर हाथ रखकर रुकने सूबाई असेंबली बलोचिस्तान अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद होने का इंकशाफ किया। दुहाई दी कि उससे और उसके 7 बच्चों को कैद से रिहाई दिलवाई जाए, मगर कैद से रिहाई ना मिली बल्कि जिंदगी की कैद से रिहा कर दिया गया। आज उस खातून और उसके 2 बेटों की लाशें कुएं से बरामद हुई हैं। तमाम लाशों के हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी, सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जबकि खातून के चेहरे को तेजाब डालकर मस्क कर दिया गया था। खान मोहम्मद मरी के मुताबिक उनकी अहलिया और बच्चों पर बदतरीन जुल्म किया जाता था, जबकि उनकी बेटी और 4 बेटे अब भी सूबाई वजीर की जेल में कैद हैं, जिनकी जिंदगी को खतरात लाहक है। सितम ज़रीफी तो यह है कि पुलिस ने ना FIR दर्ज की, ना पोस्टमार्टम किया। इलाके के लोग नमाज जनाजा पढ़ाकर लाशें एहतजाज के लिए कोयटा ले आए हैं, वहां चौक पर रख दी गई हैं। सूबाई वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि सूबाई वजीर जो 1 माह से लापता थे उनकी जानिब से आज मीडिया में गुफ्तगू में तरदीद की गई कि वाकया साख को खराब करने की कोशिश है। ये आपको बता दें कि 26 जनवरी गुजरे महीने की जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में खड़े होकर इस खबर को उठाया था। इस सिलसिले में हाउस को किरदार अदा करने की दरखास्त भी की थी, मगर उनकी दरखास्त पर भी कान ना धरे गए। वडेरों और सरदारों की निजी जेलें होना कोई नई बात नहीं और ऐसी खबरें आना भी मामूल बन चुका है। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। ये बता दें जो अभी ताज़ा तरीन खबर आ रही है, 5 रुकनी JIT बना दी गई है जो 30 दिन में रिपोर्ट देगी, क्या तवक्को रखी जाए? मगर सवाल आप सबसे इस तरह से है, मजलूम माँ और फिर सेनेटर की दुहाई, रियासत तहफ्फुज देने में नाकाम क्यों हुई? हसन साहब, रिपोर्ट का मुझसे सुन लें। रिपोर्ट देखें, वो जो सिंध में लड़का मारा गया, जो एक कांस्टेबल टाइप कोई कोयटा दिन दिहाड़े मारा गया, उसकी रिपोर्टें, मुकदमे फलाना, तो इन रिपोर्टों में क्या रखा है, क्या लेना है आपने? ये ड्रामा है, इस मुल्क में एक नौटंकी चल रही है। और ज़हन में रखें, भुट्टो ने भी सरदारी निज़ाम के ख़ात्मे के ऐलान का बहुत बड़ा एक ड्रामा रचाया था, लेकिन आज पूरा मुल्क, बलूचिस्तान तो छोड़ें, पूरा मुल्क बुज़कशी का मैदान बना हुआ है। सियासी पार्टीज माफियाज और कबाइल में तब्दील हो चुकी हैं। सियासी पार्टियां, मैं कह रहा हूं कबाइल में, और ये हर जगह यही कुछ हो रहा है, लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह है, भूख से अगर 1000 आदमी मरेगा, उसमें कोई ड्रामा, एलिमेंट ऑफ ड्रामा नहीं है। अगर बम ब्लास्ट होगा, चीथड़े उड़ेंगे, खून दिखाई देगा, लाशें तड़प रही होंगी, उस पर फिर बड़ी सनसनी हो जाएगी। भूख से एक बंदा सिसक के मर जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। पूरा मुल्क सरदारी निजाम के तहत निजी जेल बना हुआ है। अभी आपका सवाल था पहला आफ्ताब सुल्तान के हवाले से, क्या है वो? पूरा मुल्क निजी जेल है, और इस जेल का सरदार कौन है? कम से कम मैं नहीं जानता। आप एक सरदार और एक निजी जेल की बात कर रही हैं। दी इंटायर कंट्री एक जेल है जिसमें मखसूस लोग, मखसूस तबकात, दे आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स। जब मैं कहता हूं ना कि इस निजाम को तेजाब से गुसल दो, तो उसका एक मतलब है। जी शहजाद साहब, इसी गुफ्तगू को आगे लेकर आती हूँ। ये जो मुबैना निजी जेल है, ये कोई इन मखसूस शख्सियत जो है खेतरान साहिब, इनको लेकर कोई नई बात नहीं है। माजी में भी हवाले रहे इनकी निजी जेल से 14-15 में भी, तब भी लोग निकाले गए, उसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। ये सूबाई वजीर भी हैं, और 1 महीना गूंज रही इसकी सोशल मीडिया पर भी, सेनेट के अंदर भी, लेकिन कोई बचाने वाला ना था। ये क्यों हुआ सर? अच्छा, आपका सवाल ये था कि इसको रियासत क्यों नहीं बचा पाई, या इन लोगों को, बेचारों को क्यों रियासत नहीं बचा पाई? खेतरानी साहब ही तो रियासत है, खेतरानी ही तो रियासत है। यही तो हमारा मसला है। खेतरानी नाम नहीं है किसी एक शख्स का, ये एक माइंडसेट है, और ये एक हर तरफ फैला हुआ है। आप बलडेरा कह लें, आप सरदारी कह लें, आप साउथ पंजाब के कुछ और बड़े लोग कह लें, जो भी कह लें। हमने कितने हुकूमत खाने ढूंढे हैं अभी तक? हम खुद तो कह रहे हैं कि नई चीज नहीं है, हम सबको पता है कि हुकूमत खाने हैं।
مسنگ پرسنز کا دیکھیے 4 نکل آئے اس میں سے. ہم کتنا شور مچاتے ہیں مسنگ پرسن لے کے, ساری دنیا اسلام آباد کو چلی ہوتی ہے مسنگ پرسن. ان حکومت خانوں میں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے, ہم نے کس نے جا کے تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کیا کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کون مسنگ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور کیوں مسنگ ہے, اور کیا وجہ ہے کہ وہ مسنگ ہے. مجھے بتائیے یہ جو سرداری نظام, یہ جو کھترانی صاحب ہیں اینڈ سو مینی مور ریسپیکٹیبل جو ہمارے لیڈران ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے جو مزارے ہیں, جو مر گئے بیچارے, ان کو سیاست میں کبھی موقع نہیں ملتا, لیکن کھترانی صاحب کسی نہ کسی پارٹی میں, کسی نہ کسی حکومت میں ضرور موجود ہوں گے. تو اس لیے دیکھیے بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں, چھوٹے صوبوں کا استحصال ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کا, ان شخصیتوں کا, ان کے عوام کا جو کہ کیڑے مکوڑے ہیں. وہیں پہ 2 سال پہلے کی بات ہے, 3 سال پہلے کی بات ہے, وہ جن کو رمضان کے اندر وہ بیچارہ پولیس والا روکنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک تیز گاڑی کو کچل دیا گیا ٹریفک کے اندر, ٹریفک کانسٹیبل, وہ کیڑا مکوڑا تھا نا, رینگ رہا تھا نا, اس کو کچلنا مقصود تھا. بڑے صاحب آ گئے تھے, انہوں نے کچل دیا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے ویوز کو وائڈن کرنا پڑے گا. 75 سال ہو گئے, ہمیں پتہ ہے کہ حکومت خانے ہم کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ ریاست کے ہی حکومت خانے ہیں, یہی ریاست ہے, یہی پارلیمنٹیرینس ہے, پارلیمنٹ ہی ریاست ہے. جب تک ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے اس وقت تک ان کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ جب باتیں لے کے آتے ہیں نا وہاں پہ مسنگ پرسن کی, سینٹ کے اندر اور باقی جگہوں پہ اور اپنی اسمبلیوں میں, دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانکا کریں, وہاں سب کے سب مسنگ پرسن شاید مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پوائنٹ شہزاد صاحب نے رکھا ابصار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کھیتران ہی ریاست ہے, اور بڑا انہوں نے اس کو آگے جس طرح ایکسپلین کر دیا پورا کہ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں, کہیں اور بیٹھے ہیں, اپنے دائیں بائیں دیکھیں. سر اگر اتنی گونج رہی اس بات کی, سینٹ کے اندر اٹھی آواز, نہ کسی نے مذمت کی, نہ کوشش کی, نہ پتہ کرنے کیا, 4 سال سے ایک پورا خاندان قید ہے, نہ کسی کو حکومت خانوں سے فرق پڑتا ہے, نہ جیلوں سے فرق پڑتا ہے, تو پھر تو یہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ. جی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور شہزاد صاحب کی بات ٹھیک ہے, کھترانی ہی ریاست ہے, وہ ایک سمبل ہے, اگلی سمبل آف ریاست. اور اس ملک میں ریاست کوئی رہ نہیں گئی, طوائف الملوک ہی ہے, اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس نے اپنی اتنی ریاست قائم رکھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر وہ ظلم بھی کر رہا ہے, بے انصافی بھی کر رہا ہے, لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس عرصہ معیشت سے گزر کیوں نہیں جاتے, جینے کی تمنا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. اب تو یہی حال ہے, اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے, اور یہ پہلا نہیں ہے اور نہ ہی شاید آخری ہو. لیکن مجھے تو اس ریاست سے, یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو بنی ہوئی ہیں طوائف الملوکی کی وجہ سے, کسی بھی جگہ ہوں, اس میں صرف پارلیمنٹیرین ہی قصوروار نہیں ہے, پارلیمنٹیرین بھی قصوروار ہیں, دوسرے بھی ہیں جن کا جہاں بس چلتا ہے. میرا جہاں بس چلتا ہے میں نے وہاں ریاست بنائی ہوئی ہے, تو اور اوپر ریاست ہے کوئی نہیں. افسوسناک صورتحال ہے, میں اس سے زیادہ اس پہ کیا بولوں. لیکن ایک پچھلی جو سیگمنٹ میں آپ بات کر رہے تھے, اس میں ایک فیکٹ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کے نالج میں, کہ جو ابھی آج نوٹسز نیب نے جاری کیے ہیں نا, یہ 2 دن پہلے آفتاب سلطان صاحب نے ہی ان پہ سائن کیے ہیں, اور وہ کر کے گئے ہیں. اس لیے یہ ذرا میں نے کہا فیکچولی ٹھیک ہو جائے, ہمارے پروگرام میں بات کوئی ایسی غلط نہ چلی جائے. اوکے, تھینک یو فار شیئرنگ دس. عیسیٰ رانا صاحب کہتے ہیں جس مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو, حاکم وقت کی طرف ہی پھر دیکھا جائے. کیا یہاں پر کسی حکومت, کسی ریاست کو کوئی فرق پڑے گا, یا ان جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پھر ہم یہ کیوں بھی کرنا چھوڑ دیں؟ دیکھیں عائشہ, آپ نے جو ابھی انٹرو میں بات کی کہ سینیٹر مشتاق نام ہے نا جماعت اسلامی, جی بالکل مشتاق احمد, انہوں نے کیا سینٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ اس شخص کی قید میں ہیں؟ اس کے بعد بھی اگر وہ پارلیمنٹ, وہ سینٹ خاموش رہی اور انہوں نے اس پہ کوئی بات مزید نہیں کی, تو اس بات سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پارلیمنٹس, یہ سینٹ سارے ان وڈیروں جاگیرداروں کے پیر کی جوتی ہیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو شہید ہوئے نا, ان کی قبریں ہی پارلیمنٹ کے اندر بنا دی جائیں, تاکہ نشان عبرت رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پارلیمنٹ جو ریاست کے پیسے پہ چلتی ہے وہ ان کو تحفظ نہیں دے سکی. مجھے ایک بات کا جواب دیں, شاہ زیب خان کو مل گیا انصاف
क्या नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया? क्या नाजिम झोंकियों को इंसाफ मिल गया? क्या मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मिल गया? क्या बल्दिया फैक्ट्री के में जलने वालों को इंसाफ मिल गया? क्या अभी रिसेंटली वो एक सियासी मामलात लेके तो या सो मोटो भी होते रहे पिछले 5-7 साल में, खड़े पैर केसेस चलते हैं, 6-6 दिन अदालत बैठी रहती है अगर किसी को जमानत देनी हो, ये सब मामला सबकी नजर में आते हैं। कल भी आप मुझे एक बात बार बार कह रहे थे, 5 दिन हो गए इमरान खान नहीं पेश हो रहे और अदालतें उन्हें कह रही आए आए आए। ठीक है ना, 5 दिन जो अदालत एक शख्स का इंतजार कर रही है वो इनको कैसे देखेगी? और सर एक शख्स छोड़े, जब पिछले केसेस भी चले हैं, जितने सियासी मामलात हैं वो कैसे डेली बेसिस पे चलते हैं, काम बंदे की तो जिंदगी गुजर जाती है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक बारिश डीएसपी को खातून थप्पड़ मार रही थी जी, क्या बना उसका? क्या कुछ हुआ उस पे? कुछ नहीं। जो सबके सामने एक बारिश डीएसपी को थप्पड़ मारे खातून ने, क्या कुछ पे एक्शन हुआ? कुछ नहीं होगा इस मुल्क में सर, कुछ तो होगा ही किसी दिन को। क्या होगा? ऐसा भी नहीं है, यही लाशें मिलेंगी, हाथ बंधी हुई लाशें मिलेंगी। उस खातून का चेहरा मस्ख हुआ हुआ है, पता नहीं उस पर तेजाब फेंका गया कि क्या किया गया, ये लाशें मिलेंगी। सर जुल्म हमेशा नहीं रहता है सर, सब वक्त तो आएगा, अवाम को भी उठना होगा। चलें, एक और मामला है कि हम लाहौर की बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्कों में लाहौर का किरदार हमेशा से अहम रहा है। ये लाहौर ही है जिसकी सियासी लीडर की सियासी कीमत के उतार चढ़ाव, किसी भी सियासी लीडर की किस्मत के उतार चढ़ाव के फैसले करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अयूब मुखालिफ तहरीक का आगाज हो, बेनज़ीर भुट्टो की अप्रैल 86 में पाकिस्तान वापसी हो, नवाज शरीफ के सियासी उरूज की कहानी हो, या फिर इमरान खान की 15 साल जद्दोजहद का समर 2011 में मीनार पाकिस्तान के कामयाब जलसे की सूरत में हमारे सामने हो। ये लाहौर ही है जहां अपनी सियासी ताकत मनवाने से ही धाक बैठती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी लाहौर शहर से अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कल 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के साथ शुरू होगा और तहरीक इंसाफ के जारी शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां होने की सूरत में कारकुनान और अरकान असेंबली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती। जेल भरो तहरीक के लिए आने वाले दिनों में पंजाब के दूसरे शहरों के लिए भी स्केड्यूल दिया जाएगा, मगर ये बात काफी हद तक तय है कि इस तहरीक की कामयाबी या नाकामी का फैसला कल ही लाहौर में हो जाएगा। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, इमरान खान की अपनी गिरफ्तारी के बगैर जेल भरो तहरीक कामयाब हो पाएगी? हसन साहब। देखें आयशा, मैं नहीं जानता कि होती है कामयाब या नहीं होती, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इसकी कामयाबी, इस तहरीक की कामयाबी या नाकामी का ताल्लुक इमरान की ज़ाती गिरफ्तारी के साथ हरगिज़ नहीं है। अगर नाकाम होती है फैक्टर्स और होंगे, कामयाब होती है तब भी और। अच्छा, क्योंकि कल्ट और शख्सियत परस्ती में हमेशा एक बात अर्ज करता हूँ, आपके साथ पहले भी ये बात हो चुकी है कि शख्सियत परस्त और कल्ट ज़दा मुआशरा जो है ना, वो नहीं देखता। ये वो मुल्क है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो, आप तो उस वक़्त मेरा ख्याल है पता नहीं बाकियों को, दोस्तों को, सबको शायद इसार भी ना हो, नारे लगते थे। मैं सोचता था परवरदिगार ये कैसी मखलूक है, मैं बाल खड़ावा बीबी दे, मैं सदके जावा बीबी दे। ये पूरा मजमा। उस वक्त बिलावल बख्तावर पैदा हो चुके थे, ये नारा था, पूछ लेना आप। हाँ जी, मेरी उम्र के किसी बूढ़े से पूछना, बता देगा आपको जी बेहतर। अच्छा, मैं आगे बढ़ाऊंगी इसी सवाल को लेके जी। इमरान के सदके जाएंगे। सही है जी मैंने बस ये कौम, आप लोग फिर यही कहें कि इन लोगों के लिए जाने देने को। सिर्फ मैं गुजारिश करूंगी आप सबसे कि आप 1-1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करेंगे। शहजाद साहब, देखिए वो कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां। मेरे हिसाब से ये जो गिरफ्तारियां हैं ना, ये कवेले दियां टकरां। वक्त गुजर गया हुआ है, ये रीड करना चाहिए सिचुएशन को। प्रेसिडेंट ने कल अनाउंस किया है 9 अप्रैल, उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ ही सारी दुनिया खड़ी हो गई, यानी पाकिस्तान के अंदर उनकी ऑपोजिशन खड़ी हो गई। ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, सिर्फ एक ही तरीका है इलेक्शन करवाने का कि जो अदालतें हैं उनके अंदर केसेस लेके जाया जाए, वहां पर उनको इसके ऊपर फोकस करो। ये किताबी और पीछे तारीखी की बातें लेके कि अच्छा वो कितने वोटर कैद कराएगा, अपने उसके अपने वोटर हैं जो कैद कराएगा। तो अभी भाई अगर तूने वोट कराने हैं, तूने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए तो अदालतों में जाओ, क्योंकि वो सारे कह रहे हैं अदालतों से हुक्म आएगा।
اور عدالتوں کا حکم ہر ایک کو ماننا پڑے گا. تو گو فائٹ یور کیسز ان عدالت تاکہ تمہیں کوئی الیکشن مل جائے اور پھر اس کے بعد ملک کا بھی کوئی رستہ درست ہو اور تمہارا بھی جو تم چاہتے ہو تمہاری مرضی کے مطابق. تو اس لیے یہ ایک ویلے دیاں ٹکرا زیادہ اور نماز نہیں ہے ویلے. ٹھیک ہے جی. افسر صاحب یہ ٹکرے ہی ہیں کیونکہ فواد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی الیکشن کی طرف جانے کا ایک فیز ہے, حصہ ہے اس کا. دیکھیں یہ سیاسی جماعت کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو گرمائے رکھے کسی نہ کسی طریقے سے, اور جیسے کہ عمران خان پچھلے 8-10 مہینے سے کر رہے ہیں, مختلف انہوں نے مارچز کیے ہیں اور خود بھی روزانہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے اپنے ورکرز کا حوصلہ بلند رکھنے کا کہ جیل بھرو, ورنہ جیل بھرنے سے کچھ ہوگا نہیں. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب جیل بھرو تحریک ہوئی تھی وہ 1970 میں ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, اور وہ بھی اس لیے ہوئی تھی کہ تمام جو لیڈرشپ تھی, ٹاپ کی لیڈرشپ, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, وہ ساری گرفتار ہو چکی تھی اور کوئی لیڈرشپ رہ ہی نہیں گئی تھی. تو انہوں نے پھر کال دی کہ اب جو ورکرز ہیں وہ بھی جیلوں کو بھرنا شروع کر دیں, اور پھر یہ ہوا تھا. اس وقت تو یہاں سچویشن تو ایسی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ باہر موجود ہے, اور پہلے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر جو کوئی گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ 2-3 دن بعد واپس آ گئے ہیں. تو اس کی جو منطق ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی. وہ شہزاد چودھری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں اس کی منطق کوئی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے الیکشن بھی اناؤنس ہونے والے ہیں. ویسے صدر صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا, میں نے کل بھی یہ کہا تھا, آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ وہ تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن اناؤنس کرتے ہیں, جنرل الیکشنز. اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے آٹومیٹیکلی ان کی میعاد ختم ہو تو, لیکن صوبائی اسمبلیوں کے کیس میں گورنرز اناؤنس کرتے ہیں, اور اس کا ظاہر فیصلہ تو اب عدالتوں میں ہونا ہے, تو اسی کی طرف جانا چاہیے. اس سے اپنے ورکرز کو جیلوں کا دورہ کروا کے ہو سکتا ہے ان کی ٹریننگ کر رہے ہوں خان صاحب کہ آئندہ کبھی کام آئے گی. منطق کی تلاش ہے افسر صاحب کو, لیکن ہماری سیاست منطق پہ ہوتی کہاں ہے. میں معذرت چاہوں گی سر, مجھے آگے بڑھنا ہے, وقت کم رہ گیا ہے. عیسیٰ رانا صاحب, بنا عمران خان نہ ریلی نہ جلسہ کچھ کامیاب ہوتا ہے, تو بنا عمران خان گرفتاری جیل بھرو تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں عمران خان صاحب پولے پر ریڈے پولے نہیں گئے کہ پہلے خود گرفتاری دے دیں, اس لیے یہ تو آپ خواہشی نکال دیں. نہیں ہے مطلب نہیں ضروری تو نہیں ہے. لیڈر تو سامنے ہوتا ہے. ٹینس کے اندر جو کیپٹن ہوتا ہے وہ کھیلتا نہیں, باہر بیٹھ کے وہ کھیل رہا ہوتا ہے. ٹینس کے اندر جو سیاست نہیں, ٹینس کرکٹ میں کیا مثال دیتا ہوں نا میں تو ایسے آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ کل آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ جو یہ آ کے باہر کہیں گے کہ آپ بیل مجھے مار, بیل نہیں بیل انہیں پکڑے گا نہیں, ٹکرے مارے گا. 144 لگ چکی. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بیل انہیں شاید نہ پکڑے, ٹکرے بہت زور زور سے مارے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کی پوری تیاری ہے. اور بس آخری ایک جملہ ابصار بھائی کی ایک بات کا, وہ یہ نہ کہیں کہ ہر گل دا میں وضاحت دینا, انہوں نے کہا 2 دن پہلے دستخط کیے انہوں نے, تو آفتاب سلطان صاحب نے کہا کہ میں نے 5 دن پہلے استعفیٰ دیا ہے. چلیں بھائی, اب اس پہ گفتگو جاری رہے گی ہمارے پروگرام میں یقینی طور پر, اور ہمارے پینلسٹ بھی بتاتے رہیں گے کب کیا ہوا. ہمیں جانا ہے پروگرام کے اختتام کی جانب. جاتے جاتے ایک اہم خبر جو چند لمحے پہلے آئی ہے, ملاقات تھی شام میں پرویز الہی صاحب اور جو ان کے ساتھ چند ساتھی ہیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. دوسری طرف اس ملاقات سے پہلے ہی مسلم لیگ سے چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کو جماعت سے بھی باہر نکال دیا, اس کا لیٹر بھی جاری کر دیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیل کس کے فائدے میں جاتی ہے, پرویز الہی صاحب کے یا پی ٹی آئی کے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.